Assalamu alaikum students. Hope everyone will be fine. And in the last session, we have discussed about the chapter 7 bioenergetic and topic ATP. Today I am going to discuss about the next topic, which is also very important for the board exams. That one is the photosynthesis. And in this video I will explain about the phases of the photosynthesis, because photosynthesis you normally learn about that photosynthesis is the synthesis of food in the presence of sunlight, right? And you know about the equation because you already studied in 6th, 7th or 8th grade about the photosynthesis, and normally you know that what's the chemical equation of photosynthesis. You know that photosynthesis, like for this there is the need of carbon dioxide gas, and second thing, there is a use of water molecule, use of light energy, in the presence of chlorophyll, right? And then you will get the product, which is glucose C6H12O6 plus 6 molecules of oxygen gas plus 6 molecules of water. So normally in the short question in the section B, they ask about the photosynthesis, like you have to define photosynthesis and you have to write chemical equation. Clear? And when you will write this chemical equation, then you will get the marks. Like there will be 2 marks, for 1 mark for writing correct reactant and then product, and 1 mark there will be for balancing, like you have balanced your chemical equation or not. And definitely 3rd mark will be for the synthesis of the food. And if there will be, according to the other board, if there will be a 2 marks question, then 1 mark for the definition and 1 mark there will be for the chemical equation. So normally in the 6th, 7th and 8th grade, you know that photosynthesis is the synthesis of food in the presence of sunlight, and there is a use of carbon dioxide gas, water in the presence of sunlight, as well as in the presence of chlorophyll. Then you will get food in the form of glucose. Normally this equation is not so simple. It consists of 2 phases. As name is showing, like you can see over here, photo mean light, synthesis mean preparation. So which thing will be prepared? Like in the light reaction, like first phase photo, the name is showing that photosynthesis consists of 2 major phases. Number 1, which is known as light reaction. This one is the first phase. Just like the name फोटो का मीनिंग होता है लाइट. देन आप लोग देख सकते हैं सिंथेसिस का मीनिंग क्या है, प्रेपरेशन ऑफ फूड. सो दैट्स वाई द सेकेंड फेज विच इज लाइट इंडिपेंडेंट, दैट वन इज नोन एज डार्क रिएक्शन. ठीक है, ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा. आप ये देखिए फोटो का मतलब है लाइट, कि फर्स्ट जो पोर्शन है, जो फर्स्ट फेज है फोटोसिंथेसिस की, वो लाइट रिएक्शन है, लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है. सो द नेम इज लाइट रिएक्शन. और अगर हम इसका सेकेंड टर्म देखें सिंथेसिस, जिसका मतलब है कि प्रेपरेशन ऑफ फूड, तो ये वाली आपकी फेज आएगी डार्क रिएक्शन में. डार्क का मतलब ये नहीं है कि ये वाला रिएक्शन कोई डार्क रूम में हो रहा है, कोई लाइट की एब्सेंस में होता है या नाइट टाइम में होता है. बेसिकली इसका मीनिंग है कि दिस फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट. मतलब ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, इसको लाइट की नीड नहीं है, ये विदाउट लाइट भी ये प्रोसेस कंटिन्यू हो सकता है. लेकिन आप ये वाला एक पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए कि फर्स्ट जो फोटो है, पहले लाइट रिएक्शन होएगा तो वो आगे डार्क रिएक्शन की तरफ मूव करेगा. अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क भी नहीं होगा. ठीक है, ये बात प्लीज़ अपने जहन में बिठा लें कि ये डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि नाइट टाइम में होगा. Sometimes they ask in the MCQ, right, related to this, that dark reaction mean. ठीक है, तो ये प्लीज़ ये जहन में बैठाएं कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि दिस वन इज़ लाइट इंडिपेंडेंट. ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, लाइट है नहीं है इसका उससे कोई नहीं है. लाइट रिएक्शन हो जाएगा, देन इट विल लीड टू वर्ड डार्क रिएक्शन उसके बाद. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, like we know that
व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, व्हाट्स द केमिकल इक्वेशन, इसमें हमें पता है कि ये वाली चीज़ें जो है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दिस चैप्टर, यू नो, दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें हाइड्रिला से रिलेटेड आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आप ऑक्सीजन गैस को आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ऑक्सीजन गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो इस बात को प्रूव करता है कि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस होती है और ऑक्सीजन गैस जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है। ठीक है, इसमें आपके ये वाले जो फैक्टर्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल, आप इसमें से किसी एक फैक्टर को भी अगर मिस कर देते हैं, सपोज इफ देर इज अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट, लाइट एनर्जी नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को स्किप कर दें, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आप वाटरिंग नहीं करेंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं होएगी, प्लांट में विल्टिंग हो जाएगी और अल्टीमेटली उस प्लांट की डेथ हो जाएगी। क्लोरोफिल नहीं है, लाइक उसमें येलो लीव्स हैं, बिल्कुल क्लोरोफिल नहीं बना हुआ, तब भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो बेसिकली एक पिगमेंट है और ये पिगमेंट उसके प्लांट के एक, आप समझे कि जैसे कंटेनर का काम करता है, ये कंटेनर का काम कर रहा है। क्लोरोफिल के अंदर ये लाइट एनर्जी भी एब्जॉर्ब होएगी, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिड्यूस होएगी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, अब यहाँ पे प्लीज़ ये चीज़ें, ये दो चीज़ें देखिए, सनलाइट और क्लोरोफिल दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये जो लाइट रिएक्शन है ना, इसमें वाटर यूज़ होएगा। ये वाली जो चीज़ है, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल विल बी यूज्ड इन विच रिएक्शन, इन लाइट रिएक्शन, यानी फर्स्ट फेज में वाटर यूज होगा इन द लाइट रिएक्शन, राइट, और सेकेंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज होगी इन द सेकेंड फेज, दैट वन इज डार्क रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल। ये लाइट और डार्क रिएक्शन के जो स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग वीडियो में इसको एक्सप्लेन करूँगी। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन दैट व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये टर्म किस तरीके से, इसका क्या मीनिंग है, इसको आपको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से क्लियर होएगा। फोटो का कहीं पे भी वर्ड है कि जिसमें लाइट यूज़ हो रही है, और सिंथेसिस मीन प्रेपरेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। इफ़ यू विल लर्न दिस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यू कैन ईजिली राइट अबाउट द डेफिनेशन। आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये कि आप ये डेफिनेशन यूज़ कर लें। ऐसे ही जैसे कोई कुकिंग की रेसिपी है, आप उसमें करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, पहले यही होता है, इंग्रेडिएंट की लिस्ट बनती है। तो सेम आपने यहाँ पे जैसे आपने ये लर्न करना है कि पहले क्या चीज़ यूज़ होगी, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से उसमें मॉलिक्यूल्स चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए, वाटरिंग है, सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और क्लोरोफिल, और फिर हम क्या, देन वी विल ऑब्टेन ग्लूकोज, ऑक्सीजन। ठीक है, इसकी मैं दूसरा वर्ड फॉर्म में भी लिख देती हूँ, ग्लूकोज, ऑक्सीजन, राइट, और दिस वन इज अ वाटर। अच्छा, अब ये नहीं आपने करना कि सपोज स्टार्ट में ऐसे लिख रहे हैं और उसके बाद आगे जो है इक्वेशन में, अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं तो एज इट इज़ इसी तरह लिखेंगे। अगर आप ये वाली इक्वेशन में अगर आप लोग उसको वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं तो फिर आप उसके फुल फॉर्म, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ये केमिस्ट्री में भी आपको पता है कि ये रूल्स को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं होता यहाँ पर मैंने CO2 सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया और आगे मैं ये लिख दूँ ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं या आप सिंबल फॉर्म में लिख रहे हैं, वो एज इट इज़ जैसे आप स्टार्ट करेंगे वैसा ही उसका एंड होगा। ये हो गया फर्स्ट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी हो गया, और इसके अकॉर्डिंग आपका ये लाइक अगर आपको मार्क्स वगैरह है वो आपको इजीली आप उसमें ले सकते हैं। अच्छा, अब ये कि फोटोसिंथेसिस, ये आपको क्लियर होना चाहिए, फोटोसिंथेसिस किन ऑर्गेनिजम्स में होती है। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, लाइक इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें आप, हम नॉर्मली यही कहेंगे कि प्लांट्स, इट अकर्स इन ऑल प्लांट्स। ठीक है, इन ऑल प्लांट्स। देन देर आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सम ऑफ द बैक्टीरिया विच कैन प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्ट लाइक एल्गी जो ग्रीन कलर की होती है, पॉन्ड में आप ग्रीन कलर में उसको देखते हैं। इसका सेपरेट किंगडम है, किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं, बट एल्गी ऑल्सो हैव अ क्लोरोफिल, सो दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन दीज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होती है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में। आपने ये टर्म पहले सुनी होगी, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोमेटिकली,
ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ऑटोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आपने लर्न किया होगा। ऑटोट्रॉफिक का मतलब है दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्व्स, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिकली, जैसे खुद ब खुद वो अपनी फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? विच ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक, लाइक विच कैन प्रिपेयर देयर फूड विद विच प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और इसमें कौन से वाले ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं? आपको सिंपल एक नॉर्मल क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकता है। वट इज़ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल्सो लिस्ट डाउन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स। 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईजिली आप उसके बारे में लिख सकते हैं। ऑल प्लांट्स, photosynthetic bacteria, because there are so many variety of the bacteria. Some of the bacteria can prepare their food, some of bacteria can't prepare food, dependent, parasitic, pathogenic, तो different varieties हैं, but some of the bacteria can prepare their food. And protist like algae, वॉलवर्क्स, ये अपने सब ने, ये पॉन्ड के ऊपर जो ग्रीन कलर की काई फ्लोट कर रही होती है, ग्रीन कलर की होती है। अच्छा, अब ये नहीं है कि लाइक अगर मैं और आप लोग ग्रीन कलर के कपड़े पहन के खड़े हो जाएं तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्लोरोफिल लाजमी है। क्लोरोफिल बेसिकली दैट वन इज ग्रीन पिगमेंट विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो क्लोरोफिल के बगैर ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब now we will move toward the next thing, summary of photosynthesis कि ओवरऑल समरी क्या है। अब क्लोरोफिल होता किस में है? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट इज एन ऑर्गेनल। ठीक है, अगर आप ऑर्गेनल की लिस्ट देखें, प्लांट और एनिमल सेल का अगर डिफरेंस देखें तो हम यही कहते हैं प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट बिकॉज दिस रिएक्शन अकर्स इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। ये आपका, ये नॉर्मली इसमें अगर चैप्टर नंबर 4 में अगर आप लोग देखें तो उसमें क्लोरोप्लास्ट का एक स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से मिलेगा, जिसमें उसमें बताते हैं आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड इनर मेम्ब्रेन गिव राइज मैनी सैक्स। ठीक है, एंड दो सैक्स आर नोन एज थैलाकॉइड एंड सेट ऑफ द थैलाकॉइड इज नोन एज ग्रैनम। ठीक है, और ये लाइट रिएक्शन किस में होता है? लाइट रिएक्शन अकर्स ऑन थैलाकॉइड। ठीक है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है। एंड द सेकेंड रिएक्शन विच अकर्स इन द स्ट्रोमा, आई थिंक यू हैव टू रिकॉल द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर नंबर 4। उसमें इस तरीके से आपका ऑर्गेनल में, ये चैप्टर नंबर 4 में आपकी ये डायग्राम है। आई विल एक्सप्लेन दिस टॉपिक्स ऑल्सो, बट आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द चैप्टर नंबर 7 बिकॉज दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपने ये वाला स्ट्रक्चर ज़रूर उसमें किया होगा। ये इस तरीके से आपने, इन विच आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज मैनी सैक्स एंड दीज सैक्स आर नोन एज थैलाकॉइड। यानी ये जैसे अब थैलाकॉइड है, ये जब पाइल अप हो जाएंगे देन होल सेट ऑफ द थैलाकॉइड विल बी नोन एज ग्रैनम, और ये इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो ये इस तरह का स्ट्रक्चर आपने किया होगा। सो एंड दिस दैट फ्लोड एंड दिस एरिया, दिस वन इज नोन एज स्ट्रोमा। ठीक है, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा नहीं, आर नहीं स्किप करना। आर स्किप किया तो आपका ये स्टोमा होएगा, और स्टोमा आपको पता है कि ओपनिंग है in the leaf, तो stroma, right? And this one is a granum, whole set, और उसके साथ ये वाला थैलाकॉइड है। ठीक है, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, इसके अंदर, इनके अंदर लाइट रिएक्शन होएगा और इस वाली स्पेस में जो होएगा वो डार्क रिएक्शन होगा। डन। ये आपको इंशाल्लाह इसकी मैं बाद में जब ऑर्गेनल्स का करूँगी तो फिर उसके साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी। At right time I am explaining about the photosynthesis, or first of all there is very important question, differentiate between light reaction and dark reaction। तो ये इसका डिफरेंस आता होता है। अब नॉर्मली क्या करते हैं, इफ देर विल बी ए क्वेश्चन यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन लाइट एंड डार्क रिएक्शन, बच्चे स्टार्ट कर देते हैं फ़ौरन उसके स्टेप्स लिखना। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन लाइट और रिएक्शन और डार्क रिएक्शन का आता है, आप ये डायग्राम अगर लर्न कर लें
तो मैं गारंटी के साथ बेटा आप लोगों को कहती हूँ कि आप इजीली उसके डिफरेंसेस लिख सकते हो। जैसे ये मैंने लाइट रिएक्शन का बनाया है, और साथ अगर मैं ये वाला आपके साथ साइकिल, ये कुछ चीज़ नहीं है, ये जस्ट इसको शो कर रहा है कि दैट रिएक्शन इज अकरिंग इन द फॉर्म ऑफ साइकिल। ठीक है, ये इसमें डार्क रिएक्शन है, लाइक स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा है स्ट्रोमा। अभी तक अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी अपकमिंग वीडियोस के लिए और जो भी आपकी स्टडी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सब के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो आगे फर्दर उन सब के आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएं। ओके, लाइट रिएक्शन ऑन थैलाकॉइड, डार्क रिएक्शन ऑन स्ट्रोमा, ये आपको क्लियर हो गया। अब इसमें नॉर्मली हमने जैसे फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन थी, फोटोसिंथेसिस की अगर इक्वेशन को आप सामने रखते हुए करें तो आप इसको इजीली कर लेंगे। फोटोसिंथेसिस में जिस तरह आपने यहाँ पे मैंने बताया था कि वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि फर्स्ट आपका पॉइंट यही बन जाता है कि डैट देयर इज़ यूज़ ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द लाइट रिएक्शन। ठीक है, और वाटर मॉलिक्यूल्स से आगे फर्दर इससे आपको वाटर मॉलिक्यूल विल बी ऑक्सीडाइज्ड इन द फॉर्म एंड ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन। ठीक है, इसमें अगर आप इसका फर्स्ट जो है वो ये वाला देखें, आपका जो फर्स्ट फैक्टर था यानी वाटर से आगे क्या होएगा, ऑक्सीजन गैस विल बी रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और डार्क रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिड्यूस्ड इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये शुगर जो भी बनेगी आगे वो इससे C6H12O6। अब दोबारा से फर्स्ट तो इसका नेम आपको बता रहा है, फर्स्ट डिफरेंस अब आपने लिखना है लाइट रिएक्शन विच इज़ लाइट डिपेंडेंट, मतलब ये रिएक्शन जो है ये वाला रिएक्शन लाइट डिपेंडेंट है, लाइट नहीं होगी ये रिएक्शन नहीं होगा। और इधर क्या आ जाएगा डार्क रिएक्शन में आपका, दिस वन इज़ लाइट इंडिपेंडेंट। ठीक है, प्लीज़ ये मत लिखिएगा कि दिस रिएक्शन अकर्स एट द नाइट टाइम, ये अगर करेंगे तो आपका रॉन्ग डिफरेंस कंसीडर होएगा। तो इसलिए आप एक लाइट डिपेंडेंट और सेकंड आपका आ जाएगा लाइट इंडिपेंडेंट। उसके बाद ये आपका सेकंड पॉइंट आ जाएगा इट अकर्स ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और ये आ जाएगा इट अकर्स इन स्ट्रोमा। हो गए। उसके बाद थर्ड जो आपका डिफरेंस आएगा डैट वाटर देयर इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द लाइट रिएक्शन एंड ऑक्सीजन गैस इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। और यहाँ पे आपका आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका थर्ड डिफरेंस बन जाएगा। अच्छा, अब इसमें लाइट ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन एंड यू नो डैट इन दिस रिएक्शन देर इज द यूज ऑफ द लाइट एनर्जी। ये इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने मोबाइल को हाथ में पकड़ा होता है। सो देर विल बी अ यूज ऑफ light energy, right? And this light energy will be trapped in which form? In the form of ATP. You are familiar with this energy currency. And NADPH. In upcoming video inshallah I will explain about NADPH. What is this thing? So it's during light reaction high energy molecules are formed which are ATP and NADPH, right? ये इसमें होती है फॉर्मेशन। बट इन द डार्क रिएक्शन देर इज यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम ATP एंड NADPH, यानी यहाँ पे ये बन रहे हैं। लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH, यहाँ से एनर्जी जो लाइट एनर्जी है वो इस फॉर्म में ट्रैप होगी, इस फॉर्म में स्टोर होगी। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उसके बाद ट्रैप करने के बाद क्या होएगा कि डार्क रिएक्शन जो होगा वो इस एनर्जी को यूज़ करेगा, और जब यूज़ करेंगे वो आपको मैंने बताया था किस तरीके से एनर्जी है। डेफिनेटली ATP में से किस तरीके से एनर्जी रिलीज होगी, जब PP बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और सेकेंड वन जो होगा वो NADPH विल बी कन्वर्टेड इनटू NADP. And then again these molecules will move back toward the light reaction, toward the thylakoid membrane. Again they will carry the energy will be stored in the form of ATP and NADPH. ये बहुत सिंपल है, अगर आप इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप
सडनली आप कभी यहाँ ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होएगा। अगर आप 1 बाय 1 शुरू करते हैं कि ये देखिए ये रिएक्शन यहाँ हो रहा है, ये यहाँ पे हो रहा है, इसमें ये चीज़ यूज़ हो रही है, इसमें ये चीज़ यूज़ हो रही है, फिर इस पे आ जाए। इस तरीके से आप इजीली डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये वाली डायग्राम आपकी हो गई, आपने परफेक्टली आपने इसकी लर्निंग कर ली, इसको अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके लिए लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये मेरा टॉपिक समझ आ गया होगा। मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि आपके एक एक स्टेप क्लियर होए और आप इसको इजीली, लेकिन इसके लिए प्रॉमिस ये करें कि आप लोगों ने इसको ये नहीं है कि वीडियो देखा सुना बस उसके बाद बुक बंद कर दी। आपने उसको रिवाइज करें टॉपिक को, उसमें इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसको मीनिंग के साथ, जैसे फोटोसिंथेसिस, इसका मीनिंग क्या है, इसकी इक्वेशन क्या है, इसमें क्या फैक्टर्स हैं, इसमें कौन से आगे प्रोडक्ट बन रहे हैं, उसके बाद इस डायग्राम के ऊपर आ जाए। क्योंकि ये डायग्राम आपको याद होएगी तो आप लाइट और डार्क रिएक्शन के स्टेप इजीली कर सकते हैं। अगर आपने इस डायग्राम को नहीं लर्न किया तो आपके लिए लाइट और डार्क रिएक्शन के स्टेप्स जो होंगे, जो अपकमिंग वीडियो में मैं शेयर करूँगी, वो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी बोर्ड में ये इस चैप्टर से मस्ट है कि आपको क्वेश्चन शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी ये इसमें से लाजमी कुछ ना कुछ आता है। तो इसलिए इस चैप्टर को आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। आई एम श्योर कि आप लोगों को मेरी समझ आ चुकी होगी। इसके अलावा आप लोग अपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इजी बायो विद मिसेस आबेद, और होप सो कि आगे आप लोगों की इसी तरह में प्रॉब्लम्स और इसी तरह के क्यूरीज जो भी आप लोगों की है, जो मुझे लगता है कि जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे जो आपके एग्ज़ाम्स आने हैं उसमें आपके लिए ये रियली आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। और मैं अपना एक्सपीरियंस भी आगे शेयर करती रहूँगी, जो प्रॉब्लम्स और उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़।